Hi friends, so today we'll be doing the analysis of Westlife Development Limited, जो कि ऑपरेट करता है मैकडोनल्ड्स के franchises in South and West India. In North and East, there's some other company named MMG Group वो ऑपरेट करता है. So we'll be doing the analysis of Westlife Development. So what we'll be doing is कि पहले हम स्टडी करेंगे इनका business model and then the financials जो अभी recently अपडेट आया after Q1 FY25 अप्रैल में जून क्वार्टर के बाद जो अपडेट आया. So let's start. Abhi currently is having 403 stores at the end of Q1 FY25 and they are serving across 66 cities where they are present. So McDonald's we all know, right? Jo burgers, uh, coffee, chicken, fries they serve. We all have been over there. वहाँ पे. So अभी क्या है कि they work in three modes: drive through, dine in, and delivery. So delivery say they are getting 42% of the sales and 58 from dine-in. Last year this ratio was 40-60. Now it's 42-58. So delivery is growing up. We recent from last 1 year trend I'm talking about. So and if I talk about now the numbers of Q1 FY25, right? So on across all the fronts, चाहे sales का growth हो, it's flat year on year. 0.5% का ग्रोथ आया था. एंड इफ आई टॉक अबाउट सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, वहां पे तो डी ग्रोथ आया. सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ का मतलब होता है लास्ट ईयर जितने स्टोर्स लेट्स से थे उनका सेल्स वर्सेस उन्हीं स्टोर्स का दिस ईयर्स का सेल्स. सो लाइक टू लाइक कंपैरिजन करने के लिए वी कंपेयर वो. सो जो अभी जो फ्लैट ग्रोथ आया उसका रीजन क्या हुआ कि कुछ जो नए स्टोर ऐड हुए थे उनकी वजह से सेल्स ग्रोथ आया एंड जो पुराने वाले थे उनकी वजह से डी ग्रोथ आया. तो दैट्स अ थिंग. और इफ आई टॉक अबाउट द ऑपरेटिंग मार्जिन बिजनेस के लिए, वो डिग्री हुआ है फ्रॉम 17% लास्ट ईयर थे इस बार 13%. सो वो भी बहुत पुअर थे. और पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का नंबर तो -30% हो गया फ्रॉम लास्ट ईयर टू दिस ईयर. इस बार उन्होंने 600 करोड़ का सेल्स करा और ट्रेलिंग 12 मंथ्स लास्ट 1 ईयर का इफेक्ट 2400 करोड़ का. सो नंबर्स ऑन एवरी फ्रंट आर बैड. Management has said some statements दिया in the con call about this only कि margins were impacted because of the high marketing spend. इनका marketing spend था because अभी इन्होंने संजीव कपूर के साथ कुछ टाइप करा for new launches and campaigns के regarding, and कुछ Gen Z के लिए they are doing anime theme of kind something. So marketing spends का there's a high spend, so it will be there for 1-2 quarter or more. That's management said. And in this quarter इनका कुछ stores पे impact था because of some issues going on. Manual status की अब जो H2 second half of the year जो बचा है उनमें they are expecting some green shoots and recovery होगा. There's no कोई guidance का नहीं बोला, but they are saying कि इससे better होगा. मतलब that's something they are saying. Because इस quarter में तो every front पे बहुत बुरा numbers था. And yeah, let me check if I'm missing anything or not on this parameter. And one more thing, royalty also, royalty on the royalty front also इनको बहुत hit हुआ. Last year the royalty was 5.2%, but this year it's 5.7%. So वो तो straight away top line पे जब इतना बड़ा impact होता है तो वो margins को भी erode करता है. So that's also the reason. अब वो तो permanent रहेगा, मतलब royalty would be there. तो पहले दिस कंपनी यूज टू डू अच्छा सेल्स ग्रोथ, मतलब 20-25-30% पे भी दिस कंपनी हैज ग्रोन. बट अभी फ्रॉम द लास्ट 1 year हार्डली एनी ग्रोथ. एंड इफ आई टॉक अबाउट द वैल्यूएशंस फ्रंट पे, हाउ दिस कंपनी इज लुकिंग. सो बिफोर कमिंग टू इट, ऑन व्हाट्स माय टेक ऑन द कंपनी, राइट? अभी पूरा QSR स्पेस इज स्ट्रगलिंग. द मेन रीजन व्हाट आई थिंक सो इज जब से the food delivery companies are growing aggressively, like at the Zomato 70% का sales growth दिया. So earlier इन्हीं कंपनी का बीट जुबिलेंट फूड जो डोमिनोज की फ्रेंचाइजी ऑपरेट करती है, और रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया जो बर्गर किंग ऑपरेट करता है. सो दे ऑल दीज कंपनीज का पहले क्या था, मोनोपोली था बिकॉज दे हैव देयर ओन डिलीवरी सर्विस. तो जब से जोमेटो आया, जोमेटो ने अक्रॉस हर किसी को इक्वल ले आया इनके. So competition has grown immensely. Food delivery QSR space is growing, right?
बहुत बहुत ग्रो कर रहा है मतलब डिलीवरी में. बट अब दे आर नॉट द ओनली वन. जो पहले मोनोपोली था वो जोमेटो एंड स्विगी हैज टेकन अवे फ्रॉम देम. सो दैट्स अ रीजन बट आई एम थिंकिंग कि इसलिए इनको बहुत इश्यूज हो रहे हैं, स्पेशली एंटायर क्यूएसआर के नंबर नहीं आ रहे. मतलब ऑल्दो दे हैव इमेंस पोटेंशियल, ग्रो कर सकते हैं स्पेस में भी. फॉर दैट वी नीड टू ट्रैक कि इनको कैसा अभी हाउ हाउ एवरी क्वार्टर वी नीड टू सी कि इम्प्रूवमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा. बट अभी तो वॉश अवे है लास्ट 3-4 क्वार्टर से इनका. नाउ कमिंग टू फंडामेंटल्स. ओके, सो sorry, before coming to it, इनका एक FY विजन 2027 है, जो कि they gave the guidance in 22 for 27. So क्या है, I will tell you कि what is it. So इन्होंने कहा है कि 18-20% का EBITDA margin they will be doing at that point of time. इनका पहले भी था 16-17% इनका रहा है, मतलब एक साल, मतलब बिफोर फ्यू क्वार्टर्स बैक पहले इनका होता था. अभी 13% है, बट 18-20 लाना है इनको. एंड अभी करंटली दे आर डूइंग द सेल्स ग्रोथ ऑफ लास्ट 12 मंथ्स का 2400 करोड़ का. दे हैव टारगेट की 4500 करोड़ पे लेके जाएंगे. सो अभी इफ आई टॉक अबाउट इनके 3.5 ईयर्स हैं टू डू दैट मच नंबर. 3.5 साल में 2400 करोड़ से 6500 करोड़ मैनेजमेंट का गाइडेंस है. एंड मार्जिन अभी 13% है. 13 से ऑपरेटिंग मार्जिन, एबिटा मार्जिन दैट वी से, उसको they want to target to 18 से 20%. एंड वन मोर थिंग इज स्टोर्स का ग्रोथ. अभी 406 स्टोर्स हैं. दे आर टारगेटिंग 600 स्टोर्स इन नेक्स्ट 3.5 साल. सो इफ आई डू द CAGR इन सबका, तो जो सेल्स ग्रोथ है 18% का सेल्स ग्रोथ दे आर एक्सपेक्टिंग इन नेक्स्ट 3.5 years. एंड स्टोर्स का ग्रोथ 11.5%. That's their vision 2027, जो कि every quarter they are keeping कि we are on that track only. जो कि अभी still looking at the current growth तो बहुत difficult है. They need to pick up the growth and operating margin, सब कुछ improve करना पड़ेगा. Value added products add करने पड़ेंगे, so that revenue mix में sales growth और profit growth दोनों increase करना पड़ेगा. अभी तो complete wash out था. अब now coming to the valuation front इनका. So अभी तो current प्राइस टू अर्निंग रेशियो इस कंपनी का 250-260 समथिंग चल रहा है, बिकॉज प्रॉफिटेबिलिटी काफी गिर गया, राइट. लेकिन और इस 0% ग्रोथ पे 250 का पी डजंट मेक एनी सेंस. सो आई डिड सम मैथ्स कि लेट्स से थोड़ा सा मार्जिन इनका जब 16% था, तब व्हाट द प्रॉफिट दे वर अर्निंग, तो इनका 4% का पैट मार्जिन आता था जब ये 16% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट करते थे. सो अभी अगर मैं 600 करोड़ का सेल्स लूँ और उस अकॉर्डिंग 16% अकॉर्डिंग ऑपरेटिंग मार्जिन, पैट मार्जिन 4% इफ आई कैलकुलेट, तो इनका 25 करोड़ का 25 करोड़ का क्वार्टरली प्रॉफिट आता है. तो उसको मैं 4 टाइम्स कर दूं टू एनालाइज इट, तो 100 करोड़ का सेल, मतलब सॉरी 2400 करोड़ के सेल्स पे 100 करोड़ का प्रॉफिट ईयरली दे विल डू. आई हैव अज्यूम्ड कि थोड़ा मार्जिन इंप्रूव हो गए. कंपनी अगर 16% मार्जिन करे, जो पहले करती थी कुछ क्वार्टर्स पहले, तो क्या होगा पी. सो नंबर 125 का पी आता तब, मतलब बिकॉज अभी करंट मार्केट कैप 12,000 करोड़ है. एफ आई से की जो 100 करोड़ का अगर प्रॉफिट करेगी तो प्राइस मार्केट कैप बाय अर्निंग्स, सो दैट गिव्स मी द पी ऑफ 125. तो 125 की पी पे भी अगर कंपनी डिलीवर्स 18% का ग्रोथ दैट दे आर स्टेटिंग, तब भी इट्स नॉट अ worth at all deal as per my opinion. There are a lot of good companies जो बहुत तेज ग्रो कर रहे हैं, still trading at a less P than this. So this is something, अगर ये कंपनी ग्रोथ अपना रेट, सेल्स ग्रोथ रेट, ऑपरेटिंग मार्जिन इफ नॉट डिक्री, मतलब कांस्टेंट ऑपरेटिंग मार्जिन से मार्जिन से बढ़ाए और सेल्स ग्रोथ भी बढ़ाए, देन वी कैन हैव अ डिफरेंट पिक्चर. वी नीड टू ट्रैक इसको हर क्वार्टर पे भी. बट अभी तो इट्स बहुत ही पुअर वॉश आउट क्वार्टर था ये तो. एंड कुछ देयर इज नथिंग अभी ऑन द एग्जीक्यूशन फ्रंट दैट आई एम सीइंग. मतलब दे आर ओपनिंग स्टोर्स कि 40 से 50 स्टोर्स ऐड कर देंगे ताकि अपना विजन 2027 को मेंटेन रखना है इनको. बट अभी सेम स्टोर से ग्रोथ नहीं आ रहा. ऐड करके भी आई डोंट थिंक सो अभी कुछ सेंस बन रहा है कुछ नंबर्स का. इफ आई टॉक अबाउट द ROE फ्रंट पे, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है शेयर होल्डर्स के लिए कितना पैसा बना रही है कंपनी, दैट्स द फॉर्मूला इज प्रॉफिट बाय इक्विटी प्लस रिजर्व एंड सरप्लस. तो शेयर होल्डर्स के फंड पे कितना प्रॉफिट कमा रही है. सो अभी इनका पहले जो नंबर था, इफ आई टॉक अबाउट पहले लाइक लास्ट 2 साल पहले 21% का था, फिर उससे पहले लास्ट ईयर 12%. अभी करंट इफ आई टॉक अबाउट जो नंबर आए
मतलब ट्रेलिंग 12 मंथ प्रॉफिट डिवाइड बाई इक्विटी करूँ तो 7% आता है. सो ये भी नेगेटिव नंबर. सो नंबर्स आर नॉट अलाइनिंग अप. मतलब जोमेटो को ऑन द अदर साइड आप ग्रोथ देखो तो वो ऑल्दो 350 के पी पे चलता है बट 70% का ग्रोथ देता है. दैट्स वो सस्टेन कर रहा है. बट दिस कंपनी अभी तो बहुत ही पोर है. विल ट्रैक ऑन इट एंड आप भी देखो, ट्रैक करो एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस. थैंक यू. एंड कुछ भी क्वेश्चंस हो जस्ट लेट मी नो.